السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. قابل احترام معزز سامعین اور سامعات کرام، آج کے اس ویڈیو میں مکمل اس بات کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو اسلام کے متعلق غیر مسلم کا جو خیال ہے کہ اسلام عورتوں پر خاص طور پر ظلم کرتا ہے، یہ اسلام پر الزام ہے کہ عورتوں پر اور مسلمانوں پر اسلام بہت زیادہ زبردستی کرتا ہے، یعنی اسلام خود ایک ظلم اور زبردستی سے بھرا ہوا مذہب ہے. تو اس بات کو وضاحت کے ساتھ ساتھ میں اس ویڈیو کو خاص طور پر ہماری عورتیں، ہماری مسلمان بہنوں اور ماؤں کے لیے یہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اس وجہ سے کہ آج کئی ایسے گھرانے ہمارے درمیان گزرتے ہیں جن کا بسیرا اور جن کی زندگی بہت ہی مشکلات اور پریشانیوں میں گزرتی ہے. تو کیا اسلام میں اس بات کی اجازت نہیں کہ عورت بھی مرد کے ساتھ مل کر یا عورت بھی اپنے جگہ پر رہتے ہوئے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے کیا تجارت نہیں کر سکتی؟ کیا عورتیں بھی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے مرد جیسا کام نہیں کر سکتی؟ تو باقاعدہ اس کے متعلق میں بتاتا چلوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا ہوں، کہ مومنوں آپس میں باطل طریقے سے مال مت کھاؤ، یعنی دھوکے سے، چوری سے اور جھوٹ استعمال کر کے مال ہرگز مت کھاؤ، رزق مت کھاؤ. اور جب بھی آپ صحیح طور پر کمانا چاہتے ہو تو تجارت تمہارے درمیان ایک ایسا ذریعہ اللہ باقی رکھا ہے جو انسان ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے صحیح معاملے کے ساتھ صحیح اور حلال رزق کماتا ہے اور کھا سکتا بھی ہے. دوسری بات اور ایک آیت میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس وجہ سے پیدا کیا کہ تم میں بہترین کون عمل کرے گا. اس چیز کو آزمانے کے لیے، اس امتحان کو لینے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے. تو بہترین عمل صرف آخرت کا نہیں، دنیا کا عمل بھی ہے. اس وجہ سے اللہ نے ہم کو دنیا میں پیدا کیا تو باقاعدہ یہاں کا عمل قیامت کے دن ہمارے لیے ذخیرہ بنتا ہے. تو یہاں کا عمل بھی ہمارے لیے ضروری ہے اور آخرت کی تیاری بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو چند ایسی تجارتیں یا چند ایسے کام میں بتاتا چلوں جو باقاعدہ عورت اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے باقاعدہ کما سکتی ہے. یعنی چند ایسی تجارتیں یا ایسے کام بتاتا چلوں جو نہ پڑھے ہوئے بھی ان پڑھ لوگ جن کو کچھ تعلیم کا تعلق نہیں ہے، ایسے عورتوں کو بھی باقاعدہ یہ بہت ہی کام آنے والی تجارتیں جسے اسلام باقاعدہ اجازت دیتا ہے، ایسی چیزوں کے متعلق میں بتاتا چلوں. ضرور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور اپنے گھرانے میں عورتوں کو اور دوسرے عورتوں تک خاص طور پر اس ویڈیو کو پہنچانے کی کوشش کریں. جب ہر چیز کا ایک مقصد ہے تو اشرف المخلوقات انسان کا کوئی مقصد نہیں ہے. ہر موقع پر اسلام آپ کا خیال رکھتا ہے تو کیا اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے؟ اسلام کے متعلق کسی بھی طرح کا سوال ہو، آپ ہم سے پوچھیں، ہم آپ کا جواب دیں گے. پہلا کام جو عورت اپنے گھر میں رہ کر پردے کے اہتمام کرتے ہوئے جو کام کر سکتی ہے، اس کو میں سب سے پہلے مکتب کے متعلق آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. اس وجہ سے کہ اکثر گھرانوں میں الحمدللہ ہمارے گھرانوں کی عورتوں کے درمیان، ہمارے گھرانوں میں خاندانی طور پر قرآن کا الحمدللہ بہت ہی لحاظ رکھا جاتا ہے. اکثر گھرانے قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں. تو یہی چیز ایک عورت باقاعدہ آسانی سے سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر میں رہتے ہوئے یہ کمائی کا ذریعہ بنا سکتی ہے. اب قرآن کا سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا، اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ہی فضیلت بتائی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہیں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو قرآن کو سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا یہ ایک عبادت اور ثواب کا ذریعہ ہے، اور باقاعدہ ہم اسے عربک ٹیوشن کا نام دے کر باقاعدہ ہم قرآن سکھا سکتے ہیں. اسے ٹیوشن کے طور پر لوگوں کو اور بچوں کو خاص طور پر پڑھا سکتے ہیں. عورتوں کے لیے بہت ہی بہترین ذریعہ ہے کہ وہ صبح کے وقت ہو، دوپہر کا وقت ہو، شام کا وقت ہو، رات کا وقت ہو، جو پڑھنے والے ہیں، جن کو پڑھنے کا شوق ہے، وہ جو وقت میں فری ہوتے ہیں اس وقت باقاعدہ اپنے گھرانے میں انتظام کر کے ان کو پڑھا سکتے ہیں، اور باقاعدہ ٹیوشن فیس رکھ کے اسے
हासिल कर सकते हैं। सिर्फ इसमें बच्चों का ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ बड़ी बड़ी औरतों का हो या बालिग बच्चियों का हो, जो और बड़ी बूढ़ी औरतें जो भी पढ़ना चाहते हैं, वो तमाम उम्र वालों को बाकायदा अपने घर में दावत देकर वो पढ़ा सकती हैं। और जब मर्द बच्चे की बात आती है तो उस वक्त सिर्फ नाबालिग बच्चों को अपने घरों में दाखिला दे सकते हैं। इसके अलावा बालिग बच्चों से गैर महरम का लिहाज रखना होगा कि वह सिर्फ अपने ही बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह अरबिक ट्यूशन में ये ऐसा एक अहम जरिया है जो औरत अपने घर में रहते हुए कमा सकती है। दूसरा बेहतरीन काम जो औरत अपने घर में रहकर कमाई का ज़रिया बना सकती है वो दर्जी करना है, यानी टेलरिंग जिसे कहते हैं, टेलरिंग करना। ये बेहतरीन और ज़बरदस्त काम है जो औरतों के लिए मुनासिब है। मैं इस बात का मशवरा भी दूंगा कि हमारे औरतों में बाकायदा टेलर होना चाहिए। औरतों के लिए, ख़वातीन के लिए टेलर, लेडीज़ टेलर होना बेहद ज़रूरी है। इस वजह से कि आज हमारे कई घराने की औरत, बच्चियाँ और औरतें, हमारे कई बालिग लड़कियां दूसरे गैर महरम मर्द टेलरों के पास जाती हैं, जेंट्स टेलर के पास, और बाकायदा वहाँ पर उनको बहुत सी चीज़ों का मामला होता है, बहुत सी चीज़ों की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस वजह से अगर हमारे ही ख़ानदान में, हमारे ही दरमियान अगर लेडीज़ टेलर मौजूद हो तो हमारे लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, जो बग़ैर पर्दे के साथ औरत दूसरे औरत के सामने बाकायदा अपने तमाम हाजात पूरे कर सकती है। और दूसरी चीज़, अगर टेलरिंग औरत सीखे और उसके साथ वो कमाई करे तो ये सबसे बेहतरीन काम है जो औरत अपनी जगह पर पर्दे का एहतमाम करते हुए ये काम ज़रूर कर सकती है। तीसरा एक बेहतरीन काम जो औरत अपने घर में रहकर और पर्दे का एहतमाम करते हुए जो करने का काम है वो इस्त्री करना है, आयरनिंग है, आयरन बॉक्स है। कि ये ऐसा ज़बरदस्त काम है कि कई औरत के कपड़े हैं जो गैर महरम के पास पहुंचाना पड़ता है, वहाँ पर आयरनिंग करना, वहाँ पर इस्त्री करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हमारे माशरे में, हमारे महल्ले में चंद ऐसी औरतें हों जो अपने घर में बाकायदा आयरन करती हो, इस्त्री करती हो, तो कई औरतों के कपड़े जो हैं वो बग़ैर मर्दों के पास जाए औरतों के पास भेज सकते हैं। और ये हमारे माशरे के लिए भी सहूलत बनेगी, और जो औरत ऐसा करना चाहे उसके लिए बाकायदा इस्लाम में इजाज़त भी है कि वो पर्दे में रहते हुए, अपने औरतों के हो, मर्दों के हो, वो अंदर घर में रहते हुए जो वक्त में आप खाली रहते हैं, जो वक्त आप फ्री रहते हैं, उस वक्त ज़रूर आप काम करें और ज़रूर इसका उजरत आप हासिल कर सकते हैं। एक ज़बरदस्त काम है जो औरत ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत और पसीना ना छुटाते हुए भी वो अपनी तिजारत को, अपनी कमाई को बाकी रख सकती है। चौथा एक ऐसा ज़बरदस्त काम जो औरतों के लिए बहुत मुनासिब है और इसमें बाकायदा औरत बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा सकती है, कि वो घर में रहते हुए पर्दे का एहतमाम करते हुए लिबास की कारीगरी, यानी जिसे हम ड्रेस डिज़ाइनर कहते हैं, कि वो ड्रेस पर, वो औरत के तमाम तरह के लिबास पर, हर कपड़े पर वो डिज़ाइन डाल सकती है, जो छोटे छोटे चमकीले चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए बाकायदा डिज़ाइन बना सकती है। अगर ये काम औरत सीख ले, बहुत आसान काम है, अक्सर घरानों में काम होता भी है, अपने तौर से अपने अपने कपड़ों के लिए औरतें करती भी रहती हैं। अगर ये काम औरत सीख ले तो बाकायदा दूसरों को बाकायदा कर कर दे सकती है और इसमें उजरत भी हासिल कर सकती है। तो ड्रेस डिज़ाइनिंग ये बहुत बेहतरीन काम है, ये फ़नकारी भी है, इसमें बहुत महारत की ज़रूरत भी पड़ती है और इसके साथ साथ इसका पैसा भी बहुत ज़्यादा औरत हासिल कर सकती है। पांचवा एक अहम काम जो औरत अपने घर में रहकर बग़ैर किसी तालीम की ज़रूरत और बाकायदा पर्दे का एहतमाम करके औरत अपने घर में जो काम करने का एक अहम मशवरा है उसमें पकवान है, कुकिंग है। आप चाहे होटल से ताल्लुक़ रखें या ख़ुद अपने घर में पकाने का ताल्लुक़ रखें, दो भी तरह से आप कमा सकते हो। जैसा कि अगर हमारे दरमियान कई ऐसे मिसालें हैं कि मर्द हजरात बाहर होटल में काम तो करते हैं मगर इनका पकवान एक सालन हो या कोई ख़ास चीज़ हो या खाना हो, रोटी हो, इस तरह की ख़ास चीज़ें घर से पक कर आती हैं और यहाँ पर मर्द हजरात काम करते हैं। तो ये चीज़ आप अपने तौर पर किसी ख़ास होटल से या अपने महल्ले में जो होटल है उससे ताल्लुक़ जोड़ के कि मैं पका कर देने के लिए तैयार हूँ, आप चीज़ें ला कर दें, हम आपके लिए बना कर देंगे और उसकी उजरत आप ज़रूर हासिल कर सकते हो। आप पर्दे का एहतमाम भी रहेगा और घर में रहेंगे और बाकायदा आप जो औरत का काम है, जो पकवान है, वही काम से आप बाकायदा ये चीज़ें, ये उजरत हासिल कर सकते हो, अपनी तिजारत को, अपने घर को बहुत बेहतरीन अंदाज से संभाल भी सकती हैं।
छठा एक काम जो औरतों के लिए बहुत ही मुनासिब है और बहुत ही आसान है और इसके ज़रिए भी वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकती हैं अपने घर में रहकर पर्दे का अहतमाम करके। कई ऐसी तिजारतों में से एक तिजारत ये भी है कि वो कुकिंग क्लास यानी पकवान की तालीम दे सकती हैं। हमारे घरानों में कई ऐसी लड़कियां हैं जो शादी होने के करीब पहुंच जाती हैं, जो शादी भी हो जाती हैं मगर उनको पकवान नहीं आता। तो आप अपने घर में अच्छे तौर से पकाने का सीखें और ज़रूर आप एक बोर्ड तैयार करें कि जिसमें पकवान की तालीम यानी कुकिंग क्लासेस यहाँ पर दी जाती हैं। तो बाकायदा उसे आप एक ख़ास टाइम मुतय्यन करें, आपके नाश्ते के बाद हो या दोपहर के बाद या असर से लेकर मगरिब तक, जो 4 से 5 6 के दरमियान का वक्त है, यहाँ पर 1 घंटे की क्लास मुतय्यन करें जिसमें ख़ास तौर पर लेडीज़ को यानी गर्ल्स, ये जो लड़कियाँ हैं बालिग़ लड़कियाँ, उनको बुलाएँ, दावत दें और उनको बाकायदा पकवान सिखाएँ। पकवान सिखाने पर बाकायदा आप जिस तरह ट्यूशन की फ़ीस मुतय्यन कर सकते हो उसी तरह यहाँ पर माहाना फ़ीस या वीकली फ़ीस भी आप मुतय्यन कर सकते हो। आप बाकायदा सिलेबस रखें पकवान के मुतालिक। और ये बात मैं जानकर भी बहुत परेशान हुआ कि यहाँ पर यानी हमारे जो तालीमी सिलसिला है, जो तालीम का जो मैदान है, वहाँ पर चिफ़ एक ऐसा तालीम का ज़रिया है जो मुकम्मल 4 साल के अंदर पढ़ाया जाता है। यानी शेफ़ को बनाने के लिए, बेहतरीन कुकिंग पकवान पकाने के लिए 4 साल का यहाँ पर कोर्स पाया जाता है। इस बात को सुनकर मैं बहुत ही परेशान हुआ। तो इसी तरह आप प्राइवेट से अपने घर में एक ऐसा माहौल बनाएं कि आप बाकायदा लड़कियों को पकवान सिखाती हैं, बेहतरीन अंदाज में आप क्लासेस ले सकती हैं। तो ये महारत को ज़रूर इस्तेमाल करें, इसके ज़रिए आप ज़रूर अपने घर में कमा सकती हैं। 7वां एक अहम काम जो औरत अपने घर में रहकर अपने पर्दे का एहतमाम करते हुए इस्लाम के हुदूद में रहते हुए जो काम कर सकती है वो किसी चीज़ का पैकिंग है। यानी जैसा कि कई जगह पर मैं ख़ुद अपने आंखों से देखा हूँ कि कई औरतें मॉल्स पहुँचते हैं, वहाँ पर जो छोटे छोटे सुपर मार्केट्स हैं, बड़े बड़े मॉल्स हैं, वहाँ पर जो चीज़ें पैकिंग करके रखी जाती हैं वहाँ पर औरतों का बाकायदा दावत दी जाती है, बाकायदा उनके लिए जॉब्स और नौकरी मौजूद हैं। तो इसी तरह आप भी कोई ख़ास एक सुपरमार्केट से, एक दुकान से ताल्लुक़ रखें और जो भी वहाँ का सौदा बिकता है आप पैकिंग करने की ज़िम्मेदारी लें। जो छोटे छोटे चीज़ों में आप पैकिंग करके, जैसा कि हमारे पास पाव किलो है, आधा किलो है, किलो है, इस तरह आप छोटे छोटे कवरों में हर चीज़ पैक करके वहाँ पर पहुँचा सकते हो। और हर पैकिंग पर बाकायदा आप रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये यहाँ की छोटी छोटी तिजारत शुरू करके आप अपने घर को संभाल सकते हो। और कई ऐसी चीज़ें मैं अपने सामने आंखों से देखा हूं, जैसा कि फूलों का बनाना है। ये कई घरानों में बाकायदा सुबह के वक्त फूल देने वाला लाकर केजियों के हिसाब से देता है और उसे फिर गुन के यानी फूल धागे में लपेट कर फिर दे देना, उसे हार की शक्ल में बना देना और बाकायदा इस तरह की तिजारत भी चलती है। और एक तिजारत में और मेरे आंखों से मैं देखा हूँ इमली की तिजारत है कि बाकायदा सुबह के वक्त या एक दिन पहले वो कई किलो इमली लाकर घर तक पहुंचा देता है और उस इमली को हम एक ख़ास रोटी की शक्ल में गोल एक सर्किल की शक्ल में बनाकर देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऐसी तिजारतें हैं जो बाकायदा इस्लाम इसकी इजाज़त देता है। बाकायदा औरत अपने घर में पर्दे का एहतमाम करते हुए तिजारतें ज़रूर कर सकती हैं। 8वां एक ऐसा अमल जो बग़ैर तालीम के घर में रहते हुए पर्दे का एहतमाम करते हुए बग़ैर किसी ख़र्च के जो औरत कर सकती है वो किसी तोहफ़े का पैक करना है, यानी गिफ्ट पैकिंग है। जैसा कि हमारे दरमियान कई ऐसे त्यौहार हैं, कई ऐसे ईदें हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स और फंक्शंस हैं जहाँ पर बाकायदा लोग तोहफ़ों का एहतमाम करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, इनामात एक दूसरे को देते हैं। तो बाकायदा आप अपने घराने में कई ऐसे गिफ्ट कवर्स रखें और बाकायदा एक छोटा सा प्लास्टर और एक छोटी सी खैंची की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप मुकम्मल अपना फ़न और अपनी महारत इस्तेमाल करते हुए अपने घर में रहकर पर्दे का इस्तेमाल करके पैसा कमा सकते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे काम हैं जिसे हम मामूली समझते हैं मगर ये बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स और बड़े बड़े जहाँ पर चीज़ें तैयार होती हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स जहाँ होते हैं, ऐसी जगह पर यह महारत बहुत काम आती है। इन लोगों के लिए लोग पैसा देने के बाकायदा दिल खोल कर पैसा भी देते हैं। तो यहाँ पर आप हलाल कमाई, बाकायदा अपनी मेहनत और महारत के कमाई और बग़ैर किसी ज़्यादा मेहनत के छोटे से आप काम में बाकायदा इस तरह पैसा कमा सकते हैं।
ایک آخری کام جو عورتوں کے لیے بہت مناسب ہے اور وہ گھر میں رہ کر بغیر کسی تعلیم کے بغیر کسی خرچے کے جو پردے میں رہ کر ایک عورت سنبھال سکتی ہے وہ بچوں کا دیکھ بھال ہے، بیبی کیئر ہے۔ جیسا کہ ہمارے بڑے بڑے شہروں میں کئی ایسے والدین ہیں، کئی ایسے ماں باپ ہیں جو باپ بھی ڈیوٹی کو جاتا ہے، جاب اور نوکری کرتا ہے، اور ماں بھی نوکری کو جاتی ہے، ڈیوٹی کرتی ہے، تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو سنبھالنے کے لیے ان کو بہت ضرورت پڑتی ہے۔ کئی لوگ اپنے ننیال سے تعلق رکھتے ہیں، کئی لوگ باقاعدہ اس کے لیے ایک عورت کو متعین کرتے ہیں جو ان کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے۔ تو اسی طرح جہاں پر آپس میں ایسے پڑوسی ہوں جہاں پر دونوں بھی ہسبینڈ اینڈ وائف اور دو ماں باپ یا والدین دو بھی ڈیوٹی کرتے ہوں، تو وہاں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو باقاعدہ ان کی کیئرنگ لینا، ان کو باقاعدہ ان کو سنبھالنا، دیکھ بھال کرنے کی باقاعدہ یہ بڑے بڑے سٹیوں میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ باقاعدہ نوکریاں موجود ہیں۔ تو اس طرح آپ اپنے گھر میں رہ کر چھوٹے بچوں کو سنبھالتے ہوئے اس کے ذریعے آپ کمائی اور اس کے ذریعے اپنی زندگی کا بسیرا نکال سکتے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ چند ایسے کام اور ایسی چھوٹی چھوٹے نوکری یا چھوٹی چھوٹی ورکس بتانے کی کوشش کیا ہوں جو عورتوں سے خاص طور پر تعلق رکھتی ہیں، جو عورتیں کام کرنا پسند کرتی ہیں، محنت کرنا پسند کرتی ہیں اور گھروں میں رہتی ہوئی بیزار ہیں، تو ایسے عورتوں کے لیے یہ چیزیں بہت ہی آسان ہیں، بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہونے والی چیزیں ہیں۔ تو ضرور ان چیزوں کا آپ اہتمام کریں، اور باقاعدہ اسلام جس طرح مرد کو جتنے احکامات کے متعلق سمجھاتا ہے، بات چیت کرتا ہے، عورتوں سے بھی وہی احکامات ان کے لیے بھی ہیں۔ تو باقاعدہ عورت اپنے پردے میں رہ کر کئی ایسے کام ہیں، جہاں تک میرے دماغ میں یہ چھوٹے چھوٹے کام آئے ہیں میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کیا ہوں۔ اگر آپ کو اور اس سے بھی زیادہ معلومات حاصل ہو تو کامنٹ میں ضرور اس کے بارے میں دوسروں کو فائدے کے لیے بتائیں، اور یہ کام دوسروں تک پہنچائیں، ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ جس کی زندگیاں بہت مشکل اور تنگ میں گزر رہی ہوں باقاعدہ اس کے ذریعے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو اس سے فائدہ حاصل ہونے، اور جن لوگوں کے گھرانے مشکل اور تنگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے وسعت اور ان کے لیے نصرت اللہ تعالیٰ نازل کرے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔